نیٹ ورک کیس میں تہلکہ انمول پنکی کے سنگین الزامات نے ملک ہلا دیا۔ کراچی میں گرفتار مبینہ کوکین سپلائر انمول اور پنکی نے پولیس حراست میں ظلم و تشدد، جبری بیانات اور رشوت کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے، جنہوں نے شعبے سیاست اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ملزمہ کے مطابق اسے دباؤ ڈال کر بیانات لکھوائے گئے، جبکہ منشیات نیٹ ورک کو تحفظ دینے کے بدلے کروڑوں روپے رشوت دی جاتی رہی۔ انمول پنکی نے پولیس اور انسداد منشیات اہلکاروں پر سہولت کاری کے بھی الزامات لگائے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے، اس سے آپ بولے بنی گالا میں آپ پتہ نہیں کس بندے کا سامان دے کر آتی ہے، انہوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے۔ مجھے لاہور سے 22 دن پہلے اٹھا کر لے کر آئے۔ منشیات کیس انمول پنکی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ کراچی کی عدالت نے تعلیمی اداروں میں مبینہ منشیات نیٹ ورک کیس کی مرکزی ملزمہ انمول اور پنکی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ پروسیکیوشن نے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مزید تفتیش اور جسمانی ریمانڈ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تھانہ سچل میں درج اس ہائی پروفائل مقدمے کی سماعت کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے تفتیشی آفیسر کو سخت اور دو ٹوک ہدایات جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ کیس کی مکمل اور حتمی تفتیش بغیر کسی تاخیر کے مکمل کی جائے اور آئندہ 14 روز کے اندر چالان عدالت میں پیش کیا جائے۔ انمول میڈیا سے کیا کہنا چاہتی تھی آپ؟ میڈیا سے کیا کہنا چاہتی تھی آپ؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان خفیہ مذاکرات کا انکشاف۔ محبوبہ مفتی کا بڑا دعویٰ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ 3 ماہ سے پس پردہ خفیہ مذاکرات جاری ہیں، جن میں ریٹائرڈ سفارتکار اور سابق فوجی حکام بھی مبینہ طور پر شامل ہیں۔ انہوں نے مذاکرات اور عوامی رابطوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے بات چیت کا سلسلہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ This achievement is far more than the completion of a financial transaction. It marks the beginning of a new chapter in Pakistan's economic and financial engagement with China in the context of international capital markets. It reflects trust, partnership, innovation, financial collaboration, and our shared commitment to sustainable development and regional connectivity. As Ambassador Hashmi mentioned in his opening remarks, this moment carries even greater significance as Pakistan and China proudly celebrate 75 years of diplomatic relations, and also in the context of Prime Minister's upcoming visit. It's a relationship defined by mutual respect and trust, an unwavering commitment to each other's progress. Today's Panda Bond issuance marks another important milestone in that journey. It shows the growing maturity of our economic cooperation and the confidence of Chinese institutions and investors in Pakistan's economic direction of travel. پانڈا بانڈ کا اجرا پاک چین مالیاتی تعاون میں تاریخی پیش رفت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پانڈا بانڈ کا اجرا پاکستان اور چین کے درمیان مالیاتی اور اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ ان کے مطابق اس اقدام سے پاکستان کو چین کی مقامی سرمایہ مارکیٹ تک براہ راست رسائی حاصل ہوئی ہے، جو عالمی سطح پر دوسری بڑی کیپٹل مارکیٹ سمجھی جاتی ہے، جبکہ اس سے دونوں ممالک کے معاشی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ Islamic Republic of Pakistan is proud to be the first Panda Bond issuer from South Asia, a distinction that underscores the strength of our bilateral relationship and the credibility of Pakistan's reform agenda. Ladies and gentlemen, as CICC and HBL just mentioned, the journey towards this inaugural issuance began several years ago. The initial vision of accessing the Chinese onshore capital market dates back to 2019. Under the leadership of Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, this initiative gained renewed momentum, and those of you who know him or have worked with him, there is always a real sense of urgency. And then we got the strategic clarity in 2024. Over the past 2 years, we have worked very closely with our Chinese counterparts. I want to here acknowledge the Honorable Finance Minister and Dr. Pan from PBOC, whom I had the honor and privilege of meeting just a month back in Washington, D.C. on the sidelines
of the IMF World Bank meetings. बारिश में बच्चे को बचाते शहरी की हलाकत के इलेक्ट्रिक को 1,35,00,000 हर्जाने का हुक्म। कराची की अदालत ने बारिश के दौरान करंट लगने से शहरी की हलाकत पर के इलेक्ट्रिक को गफलत का मुर्तकिब करार देते हुए 1,35,00,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। मुतासरा शख्स शेख साद अहमद 2019 में बच्चे को बचाते हुए जाँ बहक हुआ था। अदालत ने करार दिया है कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी बिजली के इदारे पर गैर मामूली तौर पर आयद होती है और अवामी मकाम पर खंबे में करंट का होना संगीन गफलत है। हर्जाने की रकम 90 दिन के अंदर अदा करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में ज़राए इनकलाब की नई पेशरफ्त, चीनी सरमायाकारों को मकामी मशीनरी साजी की दावत। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने चीनी आला सतही वक्त से मुलाकात में चीनी कंपनियों को पंजाब में ज़राई मशीनरी, बीज, खाद और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में मकामी मैन्युफैक्चरिंग और सरमायाकारी के बाज़ाब्ता दावत दे दी। उन्होंने कहा कि पंजाब गंदम, चावल, कपास, मकई और गन्ने की बड़ी पैदावार देकर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, जबकि जदीद ज़राई मशीनरी और लाइव स्टॉक के शोबे में भी सरमायाकारी के वसीअ मौक़े मौजूद हैं। चीनी वफ़द ने पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी और मुश्तरका सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी में जबरदस्त पेशरफ्त, फिशरीज बरामदात रिकॉर्ड सतह से भी आगे निकल गए। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने पाकिस्तान की फिशरीज और सी फूड बरामदात में तारीखी और गैर मामूली इजाफे का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क के ब्लू इकोनॉमी के शोबे में एक नया संगे मील उबूर कर लिया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फिशरीज बरामदात का हजम 50 करोड़ अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गया है, जबकि हुकूमत का मुकर्रर करदा हदफ भी माली साल के इख्तिताम से 46 रोज कबल ही कामयाबी से हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन बदस्तूर पाकिस्तानी सी फूड की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है, जबकि थाईलैंड, जापान, यूरोपीय यूनियन में भी तलब में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकारों के 513 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आलमी मकामी मनफी अवामिल के बायस शदीद मंदी देखी गई, जहां ईरान अमरीका मुज़ाकरात में जमूद और शरह सूद में इजाफे के खदशात ने सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर किया। KSE के 100 इंडेक्स में 5,520 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई और मार्केट में अरबों रुपए का नुकसान सामने आया, जबकि माशी माहिरीन ने मजीद उतार चढ़ाव का खदशा जाहिर किया है। कतर से 3 दिन में दूसरा LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। तवानाई शोबे के लिए रिलीफ। पाकिस्तान ने तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए कतर से माया की कुदरती गैस का एक और बड़ा कार्गो कामयाबी से वसूल कर लिया है, जो महज 3 दिन के अंदर आने वाला दूसरा LNG जहाज है। हुक्काम के मुताबिक ये तरसील पोर्ट कासिम पर पहुंचाई गई है, जहां उसे कौमी गैस निज़ाम में शामिल किया जा रहा है, जबकि इस इकदाम से गर्मियों में मुमकिन बिजली और गैस बहरान को कम करने में मदद मिलेगी। कौमी बयानिया मजबूत बनाने और दुश्मन की साजिश नाकाम बनाने का आज़म बिलजज़्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का कहना है कि कौमी बयानिया मजबूत बनाकर मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाना नागुज़ीर है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर करते हुए कौमी यकजहती और सियासी इस्तेहकाम को मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी करार दिया। सिंध हुकूमत का बड़ा रिलीफ, कारोबारी मराकज को औकात कार की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। हुकूमत सिंध ने दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल समेत तमाम कारोबारी मराकज को औकात कार की पाबंदी से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ये फैसला कारोबारी सरगर्मियों और रोजगार के फरोग के लिए किया गया है, जिसके बाद मार्केट्स और फूड आउटलेट्स रात गए तक मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप और आयरलैंड में सैमुअल की सीरीज के लिए कौमी वुमेन्स स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी, जबकि तजुर्बाकार और नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मजबूत स्क्वाड शामिल किया गया है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से कबल डबलिन में सैमुअल की सीरीज और वार्म अप मैचेस खेलेगी, जबकि वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज 14 जून को भारत के खिलाफ मैच से करेगी। आपको बताते चलें कि आजकल फरहान सईद का मर्दों से मुतालिक बयान सोशल मीडिया पर हंगामा खेज बहस का बाइस बना हुआ है। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और अदाकार फरहान सईद के रिश्तों, मर्दों के रवैयों और खवातीन की खुदमुख्तारी से मुतालिक दो टोक बयान ने सोशल मीडिया और शोबिस हलकों में नई बहस छेड़ दी है। एक टॉक शो के दौरान फिल्म की तशहीर के सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए फरहान सईद ने साथी अदाकारा
मामिया शाह जाफर के साथ मकालमे में कहा कि रिश्तों में अक्सर मर्द गलत रवैयों के हामिल होते हैं और खवातीन इन रवैयों का शिकार बनती हैं, जिस पर उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया है कि वो रिश्ते में अपनी इज्जत नफ्स, खुशी और शनाख्त को हमेशा अव्वलीन तरजीह दें और किसी भी नामुकम्मल ताल्लुक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी या ज़हनी सुकून कुर्बान न करें।